بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹائم ایکسپریشنز کے بارے میں۔ ہم عام طور پہ تین وقتوں میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے، ایک پریزنٹ جو ہمارا موجودہ دور ہوتا ہے، فیوچر جس کی ہم امید لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ سارے جیسے a little while ago, an hour ago, دس مارننگ، یسٹرڈے وغیرہ، یہ سارے پاسٹ میں آ جاتے ہیں۔ ٹوڈے، ناؤ ڈیز، رائٹ نو، یہ سارے پریزنٹ میں آتے ہیں۔ ٹمارو، سون، نیکسٹ ڈے، ان این آور یا نیکسٹ ویک، نیکسٹ ایئر، یہ سارے فیوچر میں آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے میننگ اور اردو میں اس کے سینٹینسز بنا کے اس کو بنائیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور دیکھ سکیں کہ ٹائم ایکسپریشنز کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے یسٹرڈے۔ پاسٹ سب سے پہلے آتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے۔ یسٹرڈے گزرا ہوا کل، جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں یسٹرڈے۔ اٹ رینڈ ہیویلی یسٹرڈے مارننگ، کل صبح بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ یسٹرڈے گزرا ہوا کل، اٹ رینڈ ہیویلی یسٹرڈے مارننگ۔ لاسٹ ویک پچھلا ہفتہ، جو ویک گزر چکا ہے اس کے لیے بولتے ہیں لاسٹ ویک، پچھلا ہفتہ یا گزرا ہوا ہفتہ۔ دا میل واز سینٹ لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے میل بھیج دی گئی تھی۔ لاسٹ ویک پچھلا ہفتہ، دا میل واز سینٹ لاسٹ ویک۔ ون ویک اگو، یہ بھی پاسٹ میں آتا ہے، ایک ہفتہ پہلے، یہ بھی گزر چکا ہے۔ ون ویک اگو، ایک ہفتہ پہلے۔ ہی ریسیوڈ اے پارسل ون ویک اگو، اس نے ایک ہفتہ پہلے ایک پارسل ریسیو کیا۔ ون ویک اگو، ایک ہفتہ پہلے۔ ہی ریسیوڈ اے پارسل ون ویک اگو۔ لاسٹ منتھ پچھلا مہینہ، لاسٹ منتھ پچھلا مہینہ۔ دے ور بیزی ان ایگزامس لاسٹ منتھ، وہ پچھلے مہینے امتحانات میں مصروف تھے۔ لاسٹ منتھ پچھلا مہینہ، گزرا ہوا جو منتھ ہے اس کے لیے بولیں گے لاسٹ منتھ۔ دے ور بیزی ان ایگزامس لاسٹ منتھ۔ لاسٹ ایئر پچھلا سال، یعنی کہ یہ بھی جو گزر چکا ہے اس کے لیے بولیں گے لاسٹ ایئر پچھلا سال۔ مائی انکل واز ڈائڈ لاسٹ ایئر، میرے انکل پچھلے سال انتقال کر گئے تھے۔ لاسٹ ایئر پچھلا سال۔ مائی انکل واز ڈائڈ لاسٹ ایئر۔ A little while ago، تھوڑی دیر پہلے۔ تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ ہو چکا ہے وہ بھی پاسٹ میں ہوگا۔ A little while ago، she won a prize a little while ago، اس نے تھوڑی دیر پہلے ایک پرائز جیتا۔ A little while ago، تھوڑی دیر پہلے۔ She won a prize little while ago۔ An hour ago، an hour ago ایک گھنٹہ پہلے۔ An hour ago ایک گھنٹہ پہلے، یعنی کہ ایک گھنٹہ پہلے بھی پاسٹ میں ہوگا an hour ago۔ I met my friend an hour ago، my ادھر آئے گا۔ I met my friend an hour ago، میں اپنی دوست سے ایک گھنٹہ پہلے ملی یا ملا۔ an hour ago ایک گھنٹہ پہلے۔ I met my friend an hour ago۔ This morning is صبح۔ It rained heavily this morning، this morning is صبح یعنی کہ یہ گزر چکی ہے صبح، اس دن کی صبح جو تھی۔ It rained heavily this morning، اس صبح بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ This morning اس صبح یعنی کہ اس گزری ہوئی صبح۔ It rained heavily this morning۔ In the past ماضی میں، یعنی کہ پہلے کسی وقت۔ In the past ماضی میں۔ People lived in the caves in the past، ماضی میں لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ In the past ماضی میں۔ People lived in the caves in the past۔ A long time ago کافی وقت پہلے یا کافی ٹائم پہلے۔ A long time ago کافی وقت پہلے۔
He played the piano a long time ago. उसने काफी वक्त पहले या काफी टाइम पहले पियानो बजाई थी. A long time ago काफी वक्त पहले. He played the piano a long time ago. Recently अभी अभी, यानी कि अभी अभी जो हो चुका है वो भी जो हो चुका है तो वो पास्ट में ही आएगा. अलीना recently received a parcel. अलीना ने अभी अभी एक पार्सल रिसीव किया. रिसेंट किया था. received ये माजी के लिए आता है. रिसेंटली अभी अभी जो हो चुका है. अलीना recently received a parcel. in 2021 जैसे अभी 22 है तो 21 में जो हो चुका है या एक दिन पहले भी हो चुका है तो वो पास्ट में होगा. in 2021 हर सन वाज बोर्न इन 2021. 1921 में उसका बेटा पैदा हुआ था. उसका बेटा 2021 में पैदा हुआ था. द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि गुजरा हुआ जो कल था उससे भी एक दिन पहले. गुज़िश्ता कल से एक दिन पहले उसको कहेंगे द डे बिफोर यस्टरडे. इट वॉज वेरी हॉट द डे बिफोर यस्टरडे. कल से एक दिन पहले बहुत गर्मी थी. द डे बिफोर यस्टरडे गुज़िश्ता कल से एक दिन पहले. इट वॉज वेरी हॉट द डे बिफोर यस्टरडे. व्हेन ही वॉज बोर्न जब वो पैदा हुआ. जब वो यानी कि ये उस वक्त की बात है जब वो पैदा हुआ था. अभी वो एक दिन का है, 2 दिन का है या 1 घंटे का है तो ये उस वक्त की बात है जब पैदा हुआ तो वो पास्ट में हो गया. When he was born जब वो पैदा हुआ था. He was so cute when he was born जब वो पैदा हुआ था तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था. When he was young जब वो जवान था. He was very intelligent when he was young जब वो जवान था तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, ज़हीन था. When he was young जब वो जवान था. He was very intelligent when he was young. अब इधर से प्रेजेंट शुरू हो जाता है. टुडे हमारा आज का मौजूदा दिन जो है ये हमारा प्रेजेंट है जिसमें हम अभी रह रहे हैं. टुडे आज. यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. चार्मिंग दिलकश या अच्छे. टुडे आज. यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे. नो अब. माई सिस्टर इज़ बेटर नो मेरी बहन अब बेहतर है. नो अब यानी कि इस वक्त. माई सिस्टर इज़ बेटर नो. एट दिस मोमेंट इस लम्हे. जिस वक्त बात हो रही है उसी लम्हे. शी इज़ फीलिंग बेटर एट दिस मोमेंट वो इस लम्हे बेहतर महसूस कर रही है. एट दिस मोमेंट प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. एट दिस मोमेंट इस लम्हे. शी इज़ फीलिंग बेटर एट दिस मोमेंट वो इस लम्हे बेहतरीन महसूस कर रही है, बेहतर महसूस कर रही है. दिस वीक इस हफ्ते यानी कि ये वाला जो हफ्ता है अभी जो है ये भी प्रेजेंट में आएगा. दे आर गोइंग फॉर वेकेशंस दिस वीक वो इस हफ्ते या इस मौजूदा हफ्ते वेकेशंस के लिए जा रहे हैं. दिस वीक इस हफ्ते. दे आर गोइंग फॉर वेकेशंस दिस वीक. दिस मंथ इस महीने ये मौजूदा जो महीना है उसके लिए. इसके लिए भी लिख सकते हैं दे आर गोइंग फॉर वेकेशन. दे आर गोइंग फॉर वेकेशंस या दे आर गोइंग टू हेल्ड अ पार्टी दिस मंथ या दे आर गोइंग फॉर वेकेशंस दिस मंथ. दिस ईयर इस साल. इसका भी दिस ईयर मौजूदा साल यानी कि इस साल. इसका भी जैसे वो दिस मंथ का या दिस वीक का लगाया इसका भी लिख सकते हैं. दे आर डिसाइडिंग टू गो फॉर हज कह लें या किसी की चीज़ के लिए भी कह लें दिस ईयर. राइट नो अभी इसी वक्त यानी कि जिस वक्त बात हो रही है उसी वक्त. राइट नो अभी इसी वक्त. शी इज़ बिजी राइट नो वो इस वक्त बिजी है, वो इस वक्त मसरूफ है. राइट नो
अभी इसी वक्त, she is busy right now. At this time, इस वक्त, my mother is watering the plants at this time. My mother is watering the plants at this time. मेरी माँ इस वक्त पौधों को पानी दे रही है। इसमें भी is और is के साथ watering फर्स्ट इसकी ये आती है हमें। At this time, इस वक्त, my mother is watering the plants at this time. Nowadays, आजकल, my brother is working hard nowadays. मेरा भाई आजकल सख्त मेहनत कर रहा है। Nowadays, आजकल, my brother is working hard nowadays. These days, इन दिनों, my friend is learning computer these days. These days, इन दिनों, my friend is learning computer these days. मेरी दोस्त इन दिनों कंप्यूटर सीख रही है। As we speak, जैसा कि हम बोलते हैं, यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं, ये उस वक़्त की बात है। अब जब जैसे बोल रही हूँ तो उस वक़्त की ये बात है। As we speak, meeting is going on as we speak. जिस वक़्त जब मैं बात कर रही हूँ तो उस वक़्त मीटिंग चल रही है। As we speak, जैसा कि हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं, meeting is going on as we speak. ये आगे फ्यूचर आ जाता है। फ्यूचर जो हमने किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीद सबको होती है। टुमारो, आने वाला कल। जैसे येस्टरडे गुजरा हुआ कल था, तो टुमारो आने वाला कल। माई सिस्टर विल कम बैक टुमारो। मेरी बहन कल वापस आ जाएगी। टुमारो, आने वाला कल। माई सिस्टर विल कम बैक टुमारो। नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता। आने वाला हफ्ता लास्ट वीक होता है, पिछला हफ्ता। अगला हफ्ता नेक्स्ट वीक। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते पिकनिक के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट या सैर के लिए या आउटिंग के लिए। नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मंथ, अगला महीना। जैसे वो दिस मंथ या लास्ट मंथ था, इस तरह ये नेक्स्ट मंथ। वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, आने वाला महीना। वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने अपने नए घर में जा रहे हैं या मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर, अगला साल। आने वाला जो साल है उसके लिए कहते हैं नेक्स्ट ईयर। माई सन विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। मेरा बेटा अगले साल कॉलेज चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर, अगला साल। माई सन विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। इन एन आवर, एक घंटे में। मीटिंग विल स्टार्ट इन एन आवर। मीटिंग एक घंटे में स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इन एन आवर, एक घंटे में, यानी कि जो अभी एक घंटा आने वाला है उसमें। इन एन आवर, एक घंटे में। मीटिंग विल स्टार्ट इन एन आवर। सून, जल्द ही। शी विल लीव द हॉस्पिटल सून। वो जल्द ही हॉस्पिटल छोड़ देगी या हॉस्पिटल से घर आ जाएगी। लीव, छोड़ना। शी विल लीव द हॉस्पिटल सून। इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में, यानी कि मुस्तकबिल में जल्द ही। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी इन द नियर फ्यूचर। उसने मुस्तकबिल करीब में आर्मी में शमूलियत करने का फैसला किया है। इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी इन द नियर फ्यूचर। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। माई ब्रदर विल ज्वाइन मेडिकल कॉलेज इन द फ्यूचर। मेरा भाई फ्यूचर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा या मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करेगा। लेटर दिस इवनिंग, इस शाम के बाद। लेटर दिस इवनिंग, इस शाम के बाद। आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई फ्रेंड लेटर दिस इवनिंग। इस शाम के बाद मैं अपनी दोस्त के साथ, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ या फ्रेंड दोस्त के साथ शामिल हो जाऊंगी, शामिल होना चाहूंगी या शामिल हो जाऊंगी। लेटर दिस इवनिंग, इस शाम के बाद। आई वांट, शामिल होना चाहती हूँ। आई वांट, चाहती हूँ। लेटर दिस इवनिंग, इस शाम के बाद। आई वांट टू ज्वाइन माई फ्रेंड्स लेटर दिस इवनिंग।
वे ऑफ इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में कभी, आगे जो मुस्तकबिल में कुछ होने वाला हो उसके लिए कहते हैं वे ऑफ इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में कभी भी यानी कि दूर कभी। ही विल ट्रेवल टू अमेरिका, वे ऑफ इन द फ्यूचर, वो मुस्तकबिल में कभी अमेरिका का सफ़र करेगा। वे ऑफ इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में कभी। ही विल ट्रेवल टू अमेरिका, वे ऑफ इन द फ्यूचर। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से अगला दिन, जो आने वाला कल है उससे अगला दिन। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो इज माई डॉटर्स बर्थडे, कल से आने वाले कल से अगले दिन मेरी बेटी की सालगिरह है। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला कल से अगला दिन। द डे आफ्टर टुमारो इज माई डॉटर्स बर्थडे। इवेंचुअली, आखिरकार। माई मदर विल फॉरगिव मी इवेंचुअली, आखिरकार यानी कि किसी न किसी वक्त मेरी माँ मुझे माफ़ कर देगी। इवेंचुअली, आखिरकार। माई मदर विल फॉरगिव मी इवेंचुअली।